दोस्तों पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बहुत सारी स्पीचेस बहुत वायरल हो रही हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे, कोई मोदी जी की स्पीच, कोई अमित शाह जी की स्पीच, कोई राहुल गांधी की स्पीच। बट इसमें से एक डिबेट है जो थोड़ी मिस आउट हो गई है और उस पर आपका अटेंशन में लाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसी चीज है जो मिस नहीं होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और राहुल गांधी के बीच हुई ये डिबेट ऐसी है जो हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी का चाइना प्रेम हम सबसे छुपा नहीं है, और एस जयशंकर ने सरेआम को पार्लियामेंट में कह दिया कि चाइना गुरु हिस्ट्री के सेशन में सो रहे थे। आइए आपको इनकी जो डिबेट हुई है उसकी कुछ की हाइलाइट। The single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. He does not even understand the basics of warfare. He's talking about two-front. That ship has sailed long ago. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service. Exactly, 41 years in foreign service. He's a bureaucrat. वो एक प्रोसीजर होता है, एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यूज क्लियर करके वो तब उस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। राहुल गांधी को बोलने से पहले ये तो सोचना चाहिए था। Only been the longest serving ambassador. Longest serving ambassador. ये चाइना गुरु का कहना है कि चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है। जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर। पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. जितनी मेरी नॉलेज है, कांग्रेस सरकार के टाइम ही चाइना पाकिस्तान क्लोज आ गए थे। जब मिनरल ओर से सब रिसोर्सेज मिले थे पाकिस्तान में, तो चाइना ने उनके साथ डील की थी। कांग्रेस ने ट्राई किया था, बट उसके बदले वो अरुणाचल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। तो इतनी नॉलेज तो मुझे भी है। लेट मी टेल यू व्हाट दैट मींस। इट मींस, सर अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। प्लीज समझा दूंगा सर, प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर, डोंट वरी, आई एम रेडी टू डू इट। What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Fucking बोल दिया है। That they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army, ये क्या मन के थॉट्स जुबान पे यही जाते हैं, was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th,
when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. अमित शाह जी ऐसे बैठे, बोल लो अभी मेरी बारी आएगी. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says yesterday in his speech, he says the two-front war concept is a very old concept. And war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two-front. That ship has sailed long ago. I used, sir, the word new normal. I understand there were some objections. Some people thought it's not the right word. I will rephrase it, sir. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Okay? And let me tell you, sir, what is the Modi normal? The Modi normal is terrorists are not proxies. Number 2, cross-border terrorism will get appropriate response in our way at our time. 3, talks and terror will not go together. John Britas. If there are talks, it will only be about terror. We will, number 4, we will not give in to nuclear blackmail. And number 5, terrorism and good neighborliness cannot go together. And therefore, sir, blood and water will not flow together. And I know some members raised some issues about it, but I want to say, dams may have taken years to build before. This is Modi government. Things are different. You will see the change on the ground. And again, I repeat, blood and water will not flow. Now, sir, some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them, sir. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me, whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया. तो इतनी मोहब्बत थी, सर, कि उसको संधि बना ली थी. अब सर इनको छोड़िए. इनके अलावा एक और चाइना गुरु है. अब सर अब ऐसा है, सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर, 1, I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं, सर. I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ. अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते. और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे, सर, कहीं और से भी थे. तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में. पर सर कभी-कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है. तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं. तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं. अब ये चाइना गुरु का कहना है, सर, कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए.
सर है, हकीकत है। पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू? एग्जैक्टली 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वाली दिया। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी? इमरान। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाला है, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 एक में फैक्ट्स काले चिट्ठे। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे, आपको को पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उसे चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमान के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूँ, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। पूरा सदन ध्यान से सुने, अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी ये पाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? एग्जैक्टली एस जयशंकर ने जो धुला है, एक एक पॉइंट्स, एक एक फैक्ट्स लाके, इतिहास की जितनी मेरी भी नॉलेज है, तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहला सवाल यही आता है कि आपने लैंड क्यों दिया? सारा खेल तो पीओके का ही है। अगर पीओके कोलैबोरेशन ना होते, क्योंकि इंडिया में घुसने का एक सॉफ्ट वीक कॉर्नर चाहिए, तो वहीं से तो पाकिस्तान और चाइना की संधि शुरू होती है। तो ये सारी तो कांग्रेस की सरकार में हुई। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था हमने वो ज़मीन इसलिए दे दी चाइना को क्योंकि वहाँ पे बंजर ज़मीन थी, एक घास का टुकड़ा भी नहीं निकलता था। तो अपोजिशन में से किसी ने कहा आपके सर पे भी बाल नहीं निकलते हैं, क्या वो भी चाइना को दे दे? तो एग्जैक्टली ये सारा काला चिट्ठा तो तब से ही शुरू हुआ है, और ये आई एम वेरी ग्लैड कि ये सामने लाया गया है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसको किस तरह से पुट किया है कि एक पॉइंट बाई पॉइंट वाइज से, जिस तरह से चाइना के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से ज्ञान दे रहे थे, इफ़ यू वुड हैव लिसन्ड मी हियर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इनको ये जानना चाहिए अपने गिरबान में झांक के कि इनके जो पूर्वज थे, दादी जी, नानी जी, दादाजी, नाना जी और पापा जी, सब ने क्या मिलके चीज़ें की हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनर जब चाइना को बनाया था, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई इमेजेस हमने देखी है कि चाइना के साथ जो सीक्रेट टॉक्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, ओलंपिक्स में बुलाना, जिस टाइम इंडिया चाइना के बीच में टेंशन था, ये तो, और बाद में अब प्रेजेंट गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं कि वहाँ के सैनिक घुस आए थे, यहाँ पे ज़मीन कैप्चर कर ली गई है। ये पूरा एकदम बेबुनियाद था, है ना। वेरी सेटिस्फाइड जिस तरह का रिस्पॉन्स इनको मिला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपने व्यूज़ बताइएगा एस जयशंकर की स्पीच के बारे में, और कोई सजेशन हो अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।